You can say chemistry is a science in which we study about the chemical properties of matter and their chemical composition. So this is what chemistry is. Chemistry is an Egyptian word which means Egyptian art. It's not English. It is meaning of this chemistry is Egyptian art. And the gold was the probably first metal which was used and which occurred as a free metal in earth. तो गोल्ड सबसे पहला मेटल था जो कि फ्री मेटल के तौर पे जमीन के अंदर से हमने निकाला था. तो केमिस्ट्री को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी कैन क्लासिफाई केमिस्ट्री इनटू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं. In organic chemistry, we study about the hydrocarbons and their derivatives. And in inorganic chemistry, we study about the metals. We study about the metals. Or physical chemistry, we study about the mathematical calculations. In physical chemistry, we study about the mathematical calculations. So this is what we do there in physical chemistry. Now, in analytical chemistry, methods of analysis of chemical substances, both qualitative and quantitative, ये हम लोग analytical chemistry में पढ़ते हैं. Methods of analysis of chemical substances, both qualitative and quantitative. तो ये qualitative का meaning क्या है और quantitative का meaning क्या है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा. Solution जो chapter आएगा उसमें आपको बताऊंगा what's the meaning of qualitative analysis and what's the meaning of quantitative analysis. It includes physical and chemical both methods. So this is what the main branches of chemistry is. Now further you can elaborate chemistry into many more branches. ये branches क्या है? देखिए बायोकेमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं उनमें केमिस्ट्री का इन्वॉल्व है. दैट वी स्टडी देयर इन बायोकेमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. Arslan, we have started mole concept, some basic concepts of chemistry. That's the first chapter there in the chemistry 11th class part. Fine. So medicinal chemistry. What medicinal chemistry is? In medicinal chemistry, we study about the medicines. What do you think about medicines? Medicines means the chemical substances for the prevention and cure of various diseases. That is called medicine. So in medicinal chemistry, we study about medicinal things, medicinal materials or medicines. Soil and agricultural chemistry. In soil and agricultural chemistry, we study about the analysis and treatment of soil as to increase its fertility for the better yield of crops. So this is what we study there in soil and agricultural chemistry. In this part of chemistry, we study about the fertilizers, insecticides, germicides, herbicides, etc. In geochemistry, we study about the ores, minerals, coals, and petroleum, etc. Means earthen materials, the materials which are found inside the earth crust, that we study there in the geochemistry. In industrial chemistry, we study about the industrial processes, or you can say chemical processes involved in industries for the production of useful chemicals on a large scale at relatively low cost. Nuclear chemistry. In nuclear chemistry, we study about the nuclear reactions. See here, this point is important, what the nuclear reactions are. Now see, if we have written N2 plus thrice H2, what you will get? You will get twice NH3. What this is? This is chemical reaction. What this is? This is chemical reaction. देखो लेफ्ट साइड पर क्या है आपका नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, और राइट साइड पर भी क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है. यानी कोई भी नई चीज बनी नहीं और जो चीज थी वो खत्म नहीं हुई. So neither destruction nor creation of any new substance. That is called nuclear. That's called chemical reaction. Now see, nitrogen plus proton. What we will get? Here it is 7, 14. 7 plus 1, 8. और 8 क्या होता है? ऑक्सीजन. 14 plus 1, 15. तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है. ये न्यूक्लियर रिएक्शन है. क्यों? क्योंकि इसमें लेफ्ट साइड पर आपका नाइट्रोजन था, वो नाइट्रोजन खत्म हो गया, और राइट साइड पे आपका ऑक्सीजन है, वो आपका बना. तो यहाँ पर क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यू substance means new substance here will be found and old material will get destroyed. So this is nuclear reaction.
तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में नई तरह की चीजें बनती हैं और पुरानी तरह की चीजें खत्म हो सकती हैं। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में कोई भी नई चीज बनती नहीं है, neither formation nor destruction of any material. That is called chemical reaction. और न्यूक्लियर रिएक्शंस में नए सब्सटेंस बनते हैं और पुराने सब्सटेंस खत्म हो जाते हैं, इसे अपन न्यूक्लियर रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। देन स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। Chemical substances, see, it is concerned with the properties of substance in terms of their structure that we study there in the structural chemistry. In polymer chemistry, we study about the very high molecular masses containing compounds, and the order of those molecular masses will be approximately unit 10, 100, 1000, 10,000 lakhs. 1 lakh, order of 1 lakh or greater. These are called polymers. ये एक मॉलिक्यूल जो है, जैसे अब आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, ये मोनोमर है, ये एक मॉलिक्यूल है, और इससे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ले लेंगे N, so this will be polymer. This is polyvinyl chloride, PVC. This CH2 double bond CHCl is vinyl chloride, and if you will be taking N molecules of that, it will be polyvinyl chloride, PVC. So this we study there in polymer chemistry. लिम्नोकेमिस्ट्री, लिम्नोलॉजी आप बायो की टर्म है ये। लिम्नोकेमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री ऑफ वाटर, लिम्नोलॉजी मीन्स केमिस्ट्री ऑफ वाटर, so that is called limnochemistry. And phytochemistry means chemistry of plants. Phyto means plants and chemistry means chemistry. So the chemistry of plants is phytochemistry and the chemistry of water is called limnochemistry. फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है लेवॉइजर को कहा जाता है, और उन्होंने क्या क्या चीजें बताई कि ऑक्सीजन मस्ट है कंबशन के लिए, और जो इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर है वो कि कोई भी चीज जो है ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही कोई चीज डिस्ट्रॉय की जा सकती है, केमिकल रिएक्शन में लेवॉइजर ने बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो भी उन्होंने ही दिया, सिस्टम ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर उन्होंने ही दिया। देन उन्होंने ही जो भी मेनली केमिस्ट्री को जो स्टार्ट किया, जो केमिस्ट्री के बारे में मेनली बताया, उन्होंने ही बताया। देन उसके बाद उनकी जो वाइफ थी वो मदर ऑफ केमिस्ट्री कहलाती हैं। उनकी वाइफ मैरी एन पेरेट पॉल्स, जो कि लेवॉइजर की ही वाइफ थी, तो उनको मदर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में 1700 में मेनली उनका कंट्रीब्यूशन था। बर्जीलियस ने जो है वो जो एलिमेंट्स से आज सिंबल हम पढ़ते हैं वो बर्जीलियस ने दिए। तो ये सब छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में हमको आते हैं और एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैंने उनको क्वेश्चन से फॉर्म में ना लिख करके उनको थ्योरी के फॉर्म में लिख दिया। तो इसलिए इन सब छोटी सी चीज़ों को ध्यान रखें। आपको अलग अलग किताबों से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको इसी में ही मिल जाएगा इंशाल्लाह। और वेट क्या होता है? वेट होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देन मैटर जो है उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी भी चीज़ जिसका मास होता है और जिसका वॉल्यूम होता है यानी जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एलिमेंट्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या होती है? A simple individual having definite atomic number, has definite position in periodic table, can't be decomposed in a chemical change, denoted by alphabets only, while compound is denoted by word, that is combination of elements. तो ये elements की definition हो गया कि उनका एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है, उनकी एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है पीरियडिक टेबल में। उनको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उनको डिकम्पोज कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, और उनको सिर्फ अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं। और बहुत सारे अल्फाबेट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। यानी बहुत सारे अल्फाबेट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। वर्ड यानी कंपाउंड और अल्फाबेट्स यानी एलिमेंट्स। किसी भी सब्सटेंस का कि कोई जैसे बर्फ है तो बर्फ रहेगा कि बर्फ पानी में बदलेगा कि बर्फ गैस में बदलेगा, ये चीज डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज आर द टू फैक्टर्स व्हिच डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस। अब ये जो टेम्परेचर और प्रेशर है ना, ये आपके मालूम है कौन सी क्लास का पॉइंट है? ये क्लास 7th का पॉइंट है और ITJEE में आया हुआ है।
तो टेम्परेचर और प्रेशर ये दो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को डिसाइड करते हैं कि वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा और गैस होगा। ये क्लास 7th का साइंस का एनसीईआरटी का आपका पॉइंट है। प्योर सब्सटेंस, प्योर का मतलब क्या होता है? प्योर का मतलब होता है एलिमेंट। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? एलिमेंट। यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ एक ही तरह की चीजों से मिलकर के बना है उसे हम एलिमेंट बोलते हैं, उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। देखिए दूध है, दूध में अगर हम दूध मिलाएंगे तो वो प्योर है, लेकिन दूध में अगर हम पानी मिलाएंगे तो वो इम्प्योर है। यानी दूध में दूध मिलाएंगे तो वो एलिमेंट रहेगा, लेकिन दूध में अगर हम पानी मिला देंगे तो वो एलिमेंट नहीं रहेगा। तो एलिमेंट से मतलब प्योरिटी से होता है, प्योर से होता है। देखिए कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारा भाई है, बहन है, और वो हमारे लिए दिल में किसी तरह का कुछ नेगेटिव नहीं रखता है, हमारे लिए ट्रूली वो हमारे लिए डेडिकेटेड है, ट्रूली हमारा फ्रेंड है, तो हम उससे क्या बोलेंगे कि वो एलिमेंटल है। लेकिन अगर उसके दिल में कुछ भी सेकंड थॉट है या कुछ भी हमारे लिए नेगेटिव है, यानी जैसा वो बन रहा है वैसा वो नहीं है, तो हम उससे क्या बोलेंगे कि वो एलिमेंट नहीं है। तो इम्प्योर एलिमेंट से मतलब होता है प्योरिटी से, और अगर कोई चीज़ इम्प्योर है तो वो कभी भी एलिमेंट नहीं हो सकती। गैर मुसलमानों में जो एलिमेंट्स हैं वो बोलते हैं कि ये जो दुनिया है वो 5 एलिमेंट्स का बना हुआ है। क्या बोलते हैं वो? पंच तत्व। तो उनका पंच तत्व कहने का मतलब क्या है? वो 5 तत्व कौन से मानते हैं, 5 एलिमेंट्स कौन से मानते हैं जिससे पूरा यूनिवर्स बना है? फायर, एयर, स्काई, वाटर एंड सॉइल। इन 5 चीजों को वो मानते हैं कि पूरी दुनिया इनकी बनी हुई है, तो वो उसे एलिमेंट्स बोलते हैं। तो एलिमेंट्स यहाँ पर ये वाटर कोई एलिमेंट थोड़ी है, वाटर तो कंपाउंड है ना, H2O है। ऐसे ही एयर भी जो है वो होमोजेनस मिक्सचर है, एलिमेंट थोड़ी है। लेकिन वो लोग एलिमेंट बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनसे ताल्लुक ये रहता है कि एयर से मतलब साफ हुआ, प्योर एयर। तो यानी इन 5 चीजों की पूरी दुनिया बनी हुई होती है। 5 एलिमेंट्स हैं, ये पंच तत्व हैं। तो वो कौन से हैं? फायर, एयर, स्काई, वाटर एंड सॉइल। तो देखिए जनरल लाइफ में आप क्या बोलते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं, लेकिन केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए N+N ये क्या है? एलिमेंट है। O+O ये क्या है? एलिमेंट है। O+O+O ये क्या है? एलिमेंट है। लेकिन H+H+O ये एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है। तो ये मीनिंग हो, ये एलिमेंट नहीं है। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं। तो ये हमारा मतलब है एलिमेंट से। एलिमेंट्स का मतलब प्योर से होता है। देखिए आपने एक चीज शायद माइंड करी हो कि जो आपका ऑलिव ऑयल होता है, ऑलिव ऑयल में क्या लिखा रहता है? एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पर वर्जिन से मतलब क्या है? यहाँ पर वर्जिन से मतलब होता है प्योरिटी से, यानी उसमें किसी तरह की और दूसरी मिलावट नहीं है, दूसरी चीज मिली नहीं है, सिर्फ एक ही यानी ऑलिव ऑयल का वो बना हुआ, कोई दूसरी चीज उसमें मिलाई नहीं है। ये मतलब होता है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से। तो वर्जिन मीन्स प्योर मीन्स एलिमेंट, ये सब एक ही बात है। इसी तरह का कुछ और वर्ड भी हो सकता है जिसकी मीनिंग सेम यही हो, तो वो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए ये चीजें हुई। देन आपको प्योर सब्सटेंस बता दिया। देन इसके बाद आगे है कि जो मैटर है उस मैटर को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। उस मैटर को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है और केमिकल क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। देखिए अब यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि जो आपकी बाहरी प्रॉपर्टीज है, जो एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज है, दोस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आपका कलर क्या है, आप रेड है कि ग्रीन है, आपकी फिजिकल स्टेट क्या है, आप सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। आपका शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है, हेक्सागोनल है, रेक्टेंगल है। ये अब ये चीजें तो आप सिर्फ फर्स्ट साइट में देख करके ही बता सकते हैं ना। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर external properties and can be observed there on first sight. What about chemical properties? Chemical properties are internal properties and will take time to observe.
अब आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे हो, इंटेलिजेंट हो कि नहीं हो, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा सी वक्त लगता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट साइट में देख के आप बता सकते हो, केमिकल प्रॉपर्टीज बताने के लिए आपको थोड़ा सी समझने में वक्त लगता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है वो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, और वो मैटर को 3 स्टेट में बांटता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड आप जानते हो 4th स्टेट जो आगे आप क्लासेस में पढ़ोगे, एक स्पेशल स्टेट होती है जो 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है, जिसे आप क्या बोलते हो, प्लाज्मा बोलते हो, या कोलाइडल स्टेट बोलते हो, या बोसाइंस्टीन स्टेट बोलते हो, या स्लाइम उसका एक एग्जाम्पल है। स्लाइम, अंडे की सफेदी, गम, ये सब उस कोलाइड के, प्लाज्मा के, बोसाइंस्टीन स्टेट के, या जो आपकी 4th स्पेशल स्टेट है उसके ये सब एग्जाम्पल्स हैं। स्लाइम उसका एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल गम है, उसका एग्जाम्पल एल्ब्यूमिन है। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 फिजिकल क्लासिफिकेशन पे आप मैटर के टाइप्स होते हैं। देन जो केमिकल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो जो मैटर है उसको हम एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में 2 स्टेट्स में बांट सकते हैं। एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में हम 2 स्टेट में बांट सकते हैं। और उसके साथ साथ ये प्योर सब्सटेंस है जिनको हम एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में बांट सकते हैं। और दूसरा मिक्सचर भी होता है, जो मिक्सचर को हम हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस में बांट सकते हैं। जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स को फिजिकली हम अगर मैकेनिकली या फिजिकली अगर हम चाहें तो मिक्सचर को हम प्योर सब्सटेंस में बदल सकते हैं। देखिए आपके घर में गेहूं आता है, अब तो नहीं आता, पुराने ज़माने में जैसे आता था, तो वो जब गेहूं आता था तो उस गेहूं में बहुत सारे मिट्टी पत्थर होते थे, तो हम क्या करते थे, उसको हाथ से बीन के, मशीन से पानी से धो के मिट्टी को निकाल देते थे, यानी उसको प्यूरिफाई कर लेते थे। वही ये यहाँ कह रहे हैं, ये कौन सी मेथड थी, फिजिकल मेथड थी। हाथ से धोना या हाथ से बीनना या छानना, ये सब फिजिकल मेथड्स हैं। तो फिजिकल मेथड्स का मैकेनिकल मेथड्स से इस्तेमाल करके हम मिक्सचर को प्योर सब्सटेंस में, प्योर कंपाउंड्स में, प्योर मटेरियल में बदल सकते हैं। अब मिक्सचर आपने कहा कि होमोजेनस भी होता है, हेटेरोजेनस भी होता है। होमोजेनस मिक्सचर यानी जिसमें आटा और नमक है, जैसे तो आटे और नमक में से आप आटे और नमक को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक जैसे दिखाई देते हैं, तो उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हेट्रोजेनस है, जैसे रेत और पत्थर, तो रेत और पत्थर में से रेत और पत्थर को अलग अलग करना पॉसिबल है, यानी वो हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजेनस, जेनस यानी विजिबल, एंड होमो यानी सेम। तो होमोजेनस यानी जो एक जैसे दिखाई दे सब के सब, वो होमोजेनस कहलाते हैं। और हेट्रोजेनस, हेट्रो यानी डिफरेंट, तो यानी जो अलग अलग दिखाई दे, जैसे रेत अलग दिखाई देती है, पत्थर अलग दिखाई देता है, तो हेट्रोजेनस। लेकिन नमक और आटे में से नमक और आटे का साइज एक बराबर है ना, तो नमक और आटा अलग अलग दिखाई नहीं देता है, यानी होमोजेनस कहलाता है। तो वही यहाँ पर लिखा है आपने। अब प्योर सब्सटेंस को आप एलिमेंट्स में बांट सकते हैं, और प्योर सब्सटेंस को आप कंपाउंड्स में बांट सकते हैं। अब ये जो प्योर सब्सटेंस को आप एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में बांटना है, तो कंपाउंड से एलिमेंट्स में या एलिमेंट्स से कंपाउंड में कैसे आप बदल सकते हैं, केमिकल मेथड्स का इस्तेमाल करके एलिमेंट्स को कंपाउंड्स में, यानी जैसे N2+H2 है, तो आपने पीछे लिखा था ना N2+H2, तो अब ये क्या था, एलिमेंट था, इस एलिमेंट को आपने किस में बदल दिया, कंपाउंड में बदल दिया, तो ये केमिकल मेथड है। ठीक है, ऐसे ही कंपाउंड्स को एलिमेंट्स में बदला जा सकता है, तोड़ करके, डिकम्पोजिशन करके। अच्छा, कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स आपके इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक हो सकते हैं जो आपने पीछे देखा, और कंपाउंड्स आपके इनऑर्गेनिक हो सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये सभी चीज़ें आपके क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स का, मटेरियल का, मैटर का किया आपने, उसमें आया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की जैसे मैंने कहा, चाहे आप मैटर ले लीजिए, चाहे आप खुद ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, हर एक चीज़ में 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक तो बाहरी और दूसरी अंदरूनी। जो बाहरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो फर्स्ट साइट में देख करके अपन बिना टाइम लगाए बता सकते हैं, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो अंदरूनी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो थोड़ा सी समझने में उनको वक्त लगता है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये 2 तरह की प्रॉपर्टीज किसी भी मैटर की होती हैं। तो पहले अपन देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज।
कि चेंज इन कंपोजिशन ये केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आएगा, अदर देन कंपोजिशन के अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सभी फिजिकल में आती हैं, जैसे कलर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कंपोजिशन। तो चेंज इन कंपोजिशन हो रहा है यानी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। अच्छा, ये खत्म हो गया, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर खत्म हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस अपन देख रहे हैं जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। कि जो हाइड्रोजन है वो लाइटेस्ट एलिमेंट होता है पूरी पीरियडिक टेबल में। इतना हल्का कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं होता। इतना हल्का होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये रुक ही नहीं पाता, तो ये स्पेस में चला जाता है, यूनिवर्स में चला जाता है, और वहां पर ही ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। हाइड्रोजन पूरी यूनिवर्स का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंपोनेंट में से, कॉन्स्टिट्यूएंट में से एक है। और सबसे भारी जो एलिमेंट है वो U92-238 है, सॉरी U92-238 है। ये हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होता है, यानी जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा भारी U92-238 होता है, यूरेनियम होता है। टोटल 117 एलिमेंट्स होते हैं पूरे हमारे अर्थ में, यूनिवर्स में। उनमें से 88 जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, और बाकी जो हैं वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। जो आफ्टर 92 के पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स आते हैं, यूरेनियम 92 के बाद के एलिमेंट्स जितने हैं वो सब क्या कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जो बिस्मथ 83 के बाद के एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और उनमें से ज्यादातर जो है सीबोर्ग ने डिस्कवर किया। जो पहला आर्टिफिशियल एलिमेंट था पूरी पीरियडिक टेबल में वो TC43 था। टेक्नीशियम 43 was the first artificial element. TC43 फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट था पूरी पीरियडिक टेबल में से, टेक्नीशियम 43। टेक्निक का मतलब ही होता है कि न्यू, तो न्यूली डिस्कवर्ड मतलब नया एलिमेंट था, आर्टिफिशियल एलिमेंट था, वो टेक्नीशियम था। 10 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि 99% ऑफ अर्थ क्रस्ट कंस्टिट्यूट करते हैं। सिर्फ 10 एलिमेंट मिलकर पूरे 99% अर्थ क्रस्ट को बना लेते हैं। वो कौन से हैं 10 एलिमेंट, देखिए यहाँ पर। ऑक्सीजन 49.5%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 7.5%, Fe 4.7%, कैल्शियम 3.4, सोडियम 2.6, पोटेशियम 2.4, मैग्नीशियम 1.9, H2.87, टाइटेनियम 0.58, टोटल 99.2% हुए। अब देखिए वो आपसे कैसे पूछेंगे सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट जो है ऑक्सीजन। वो आपसे पूछेंगे सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा है, तो सबसे ज्यादा अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है। वो आपसे पूछेंगे सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो सिलिकॉन है। वो आपसे पूछेंगे ट्रांजिशन मेटल सबसे ज्यादा कौन होता है, तो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन मेटल अर्थ क्रस्ट में Fe होता है। और सेकंड एस ब्लॉक एलिमेंट जो है, सॉरी एस ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा कौन होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कैल्शियम है। अब ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है, ये फोर्थ हो गया, ये हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, और ये टाइटेनियम तो ट्रांजिशन मेटल है। तो इस तरह से वो आपसे सेकंड मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल, ये फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट हो गया, सेकंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा होगा, टाइटेनियम होगा। तो इस तरह से वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो न सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, एस में से कौन सा है, पी में से कौन सा है, डी में से कौन सा है, नॉन मेटल्स में से कौन सा है, मेटल्स में से कौन सा है। चलिए आगे चलते हैं। देन इससे बाद है वो 22 नॉन मेटल्स होते हैं पूरे पीरियडिक टेबल में। कितने नॉन मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं। उनमें से 11 जो हैं वो गैसेस हैं, 10 जो हैं वो सॉलिड हैं, और 8 जो है वो लिक्विड है। और वो कौन सा है, ब्रोमीन। तो जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंसी फिक्स प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करते हैं, रीगेन नहीं करते हैं, और फिजिकली इनसेपरेबल होते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं, उनका प्रोपोर्शन फिक्स होता है, और फिजिकली उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, सिर्फ केमिकली उनको अलग अलग किया जा सकता है।
देन प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस में ये सब जो है थियोरिटिकल पार्ट है, तो यूजुअली करते नहीं है हम, सिर्फ एक रीडिंग कर लें तो भी सफिशिएंट है, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको ये सब आपके पास एक जगह पे रहे, अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग किताबों में, अलग अलग जगह पर ना रहे, सारी इंफॉर्मेशन एक ही साथ एक जगह पर रहे। तो ये सारे मेरे पर्सनल नोट्स हैं, तो उन्हीं में से मैं आपको करा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस में सबसे पहला है डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस का मतलब क्या होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और इस तरह से गीले हो जाना। जैसे नमक को आप बहुत टाइम तक खुला छोड़ के रखेंगे बारिश में ना, तो नमक गीला सा हो जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, डेलिक्वेसेंट। और वो क्यों होता है, क्योंकि वो उसमें एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, और वो एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड जो है उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो इस तरह से होता है। तो NaOH, KOH, एनहाइड्रस, CaCl2, MgCl2 और FeCl3 ये डेलिक्वेसेंट होते हैं। अच्छा, हाइग्रोस्कोपिक पे क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हाइड्रोक्साइड्स में या हाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे CuSO4, CaO और Na2CO3 ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके हाइड्रेट्स बनाते हैं या उनके हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। इसमें हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनते, इसमें सिर्फ मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है। ये डेलिक्वेसेंट में और हाइग्रोस्कोपिक में फर्क है, दोनों में ही मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होती है। देन जो तीसरा है वो एफ्लोरेसेंट है। डेलिक्वेसेंट का उल्टा क्या होता है, एफ्लोरेसेंट। डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, और एफ्लोरेसेंट का मतलब क्या होता है कि वाटर को लूज करना, लॉस ऑफ वाटर ऑफ crystallization on exposure and becomes powdery on the surface. For example, FeSO4.7H2O, Na2CO3.10H2O, Na2SO4.10H2O, K2SO4.Al2SO4 whole thrice 24H2O, ये पोटाशियम कहलाता है। ये पोटाशियम है, ये ग्लोबस सॉल्ट है, ये ग्लोबस सॉल्ट है, ये वॉशिंग सॉल्ट है, और ये FeSO4.7H2O आयरन सॉल्ट है। देन जो मेलिबिलिटी होती है, वो मेलिबिलिटी क्या होती है कि किसी भी मेटल को अपन अटैक करें, बीट करें, हैमर से उसको पीटें, तो पीटते पीटते वो जो है थिन शीट में बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल Cu, Ag, Au, एल्यूमिनियम एंड लेड एक्सेट्रा। एंड इनमें से सबसे ज्यादा मैलिएबल जो है वो गोल्ड होता है। डक्टिलिटी, तो डक्टिलिटी ड्रॉन इनटू थिन वायर, फॉर एग्जांपल Cu, Ag, Au, Al and Fe, ये जो है ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं एलिमेंट्स। प्लैटिनम जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल है, और हार्डनेस जो आप कंपेयर करते हो वो मोस स्केल पे कंपेयर करते हो। सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है, टोपास। सबसे ज्यादा हार्ड कौन होता है, डायमंड एंड टोपास। डायमंड की हार्डनेस कितनी है 10, टोपास की कितनी है 10, टैल्क की कितनी है 1, कोरंडम की कितनी है 9, और क्वार्ट्ज की कितनी है 7। तो देखो क्वार्ट्ज टैल्क यानी जो टेल्कम पाउडर आप लगाते हो ना, वो उसकी हार्डनेस कितनी होती है 1, और डायमंड की कितनी होती है, इतनी ज्यादा होती है, टोपास की भी इतनी ज्यादा होती है। इसके बाद कोरंडम होता है, सेकंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड के बाद कोरंडम। कोरंडम यानी जानते हो क्या होता है, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड को कोरंडम बोलते हैं, तो ये अपन को पता होना चाहिए। और ये क्वार्ट्स, क्वार्ट्स जो है वो स्टोन है, रेत है। तो क्वार्ट्स पहनना हमारे यहाँ सुन्नत है, हुजूर क्वार्ट्स पहना करते थे, क्वार्ट्स की अंगूठी पहनते थे। उसका मुझे अरेबिक नाम अभी याद नहीं आ रहा है। और दूसरा एक और ख़ास चीज़ है कि क्वार्ट्स जो है वो पहला सब्सटेंस था जिसमें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी किया गया था। क्वार्ट्ज जो था वो पहला मटेरियल था जिस पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी किया गया था। और क्वार्ट्ज जो है वो पहनना सुन्नत होता है, हुजूर पहना करते थे। चलो ये आपका ये सारी चीजें हुई। देन इसके बाद नेक्स्ट जो है होमोजेनस है। होमोजेनस की मीनिंग आपको मैंने बता दी क्या होती है, हेटेरोजेनस की मीनिंग आपको मैंने बता दी क्या होती है। जैसे 20 कैरेट गोल्ड जो है वो होमोजेनस है, 20 कैरेट जो गोल्ड जो है वो होमोजेनस होता है। लेकिन अगर 22 है, 18 है, 20 है, तो वो सब हेट्रोजेनस होते हैं, क्योंकि उनमें और दूसरी चीजें मिला दी जाती हैं। लेकिन 24 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है प्योर गोल्ड। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल सब लिखे हुए हैं इसमें। गैसोलीन जो है वो होमोजेनस है, गैसोलीन यानी पेट्रोल, गैसोलीन का मतलब क्या होता है, पेट्रोल, तो वो भी कैसा होता है, होमोजेनस है। हाँ कुछ पूछना, हाँ हाँ पूछो। कुछ पूछना। अभी हाइड्रोजनस गोल्ड बताया, वो फिर से बता देंगे प्लीज।
हाँ 24 कैरेट जो गोल्ड होता है ना, उस 24 कैरेट गोल्ड में तो 100% प्योर गोल्ड होता है ना। यस सर। तो 100% है, यानी उसमें और कोई दूसरी चीज नहीं है, तो फिर तो वो प्योर हुआ ना, होमोजेनस हुआ ना। जी जी। और अगर कुछ और दूसरी चीजें इसमें मिली हुई होंगी तो वो हेट्रोजेनस होगा, वो हेट्रोजेनस होगा। ठीक है। तो सर, तो तो सर वो कितने कैरेट का होगा? वो फिर 24 से कम होगा, 22 होगा, 18 होगा, 20 होगा। 24 यानी 100% गोल्ड। जैसे समझ गया। ठीक है। अच्छा, सॉइल जो है वो आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है, सॉइल जो है वो आपका हेट्रोजेनस मिक्सचर है। तो इस तरह से और भी इन्होंने सैंड, स्मोक फिलिंग, आयरन फिलिंग एंड सैंड स्मोक, ये सभी दिए एग्जाम्पल्स। ये सब हेट्रोजेनस से एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इनको जो मिक्सचर में आपके जो हेट्रोजेनस हैं, जिनमें मतलब ज्यादा तरह की चीजें हैं, बहुत सारी तरह की चीजें हैं, तो अब रेत और पत्थर को कैसे अलग करेंगे, या शक्कर और पत्थर को कैसे अलग करेंगे, तो वो उन्होंने मेथड्स ऑफ सेपरेशन यहाँ पर दी हुई। उनमें से जो पहली मेथड ऑफ सेपरेशन है वो क्या है, फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन जैसे सॉल्ट प्लस सैंड है, तो आप फिल्ट्रेशन करके आप उसको सॉल्ट सैंड को सेपरेट कर लोगे सॉल्ट से, है ना। तो sand will be filtered after evaporation of water and salt will be left. सॉल्ट बचेगा और रेत जो है वो निकल जाएगी, रेत जो है वो रुक जाएगी और सॉल्ट दूसरी तरफ चला जाएगा। सब्लिमेशन दूसरी मेथड है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलना बिना लिक्विड में बदले, या वेपर्स को डायरेक्टली सॉलिड में बदलना बिना लिक्विड में बदले। तो जैसे नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं जो आप कपड़ों में रखते हो, है ना, वो नेफ्थलीन बॉल्स हैं। देन कैम्फर जो है, कैम्फर कपूर जो है वो भी इसी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। देन NH4 प्लस KCl जो है वो भी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। जो आपकी अगरबत्ती है एसेंस स्टिक, वो भी तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाती है ना, वेपर्स में बदल जाती है ना, फ्यूम्स में बदल जाती है, पानी में थोड़ी बदलती है, तो वो भी सब्लिमेशन का ही एग्जाम्पल है। देन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है, डिस्टिलेशन का मतलब होता है कि पहले इवापोरेशन और फिर कंडेंसेशन। जैसे पानी पड़ा हुआ है, ये पानी इवापोरेट होगा, फिर कंडेंस होगा, और कंडेंस होकर के बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाएगा। इसे अपन क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, डिस्टिलेशन बोला जाता है। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि एक मिट्टी है और एक मैग्नेट है, तो मिट्टी और मैग्नेटिक मटेरियल को कैसे सेपरेट करेंगे, मैग्नेटिक बेल्ट अपन ले लेंगे, तो मैग्नेटिक बेल्ट से मैग्नेट जो है वो चिपक जाएगा, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो निकल जाएगा। उसे अपन मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड बोलते हैं। देन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है कि अपन एक सॉल्वेंट में दो मटेरियल लेते हैं, उन दो मटेरियल में से एक मटेरियल उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है और दूसरा मटेरियल सॉल्युबल नहीं रहता है। इस तरह से जो सॉल्युबल हो जाता है सॉल्वेंट में, उसको अपन जो सॉल्युबल नहीं होता है, इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड से इस तरह से सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, ऑयल एंड वाटर जो है तो एक दूसरे में इनमिसिबल लिक्विड्स हैं, उनको हम कैसे सेपरेट करते हैं, उनको हम सेपरेटिंग फनल से सेपरेट कर देते हैं। ऑयल पानी में घुलता नहीं ना, तो एक बर्तन में अपन ऑयल और पानी लेते हैं, तो ऑयल ऊपर रहता है, पानी नीचे रहता है, तो बिना हिलाए डुलाए उस ऑयल को अपन दूसरे बर्तन में गिरा लेते हैं, जिससे कि ऑयल सेपरेट हो गया और पानी बचा रह गया। तो इस तरह से अपन सेपरेट कर देते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ये प्योरली थियोरेटिकल पार्ट है, रीडिंग वाला पार्ट है, इसे अपन अच्छे से देखें, और अगर इन केस कोई मुश्किल जाए तो फिर मुझे बताएं। इंशाल्लाह मुश्किल नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी अगर इन केस जाती है तो बताएं, मैं इसको आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं आपको जो जितना मैंने पढ़ाया है क्लास वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर दूसरा टॉपिक है, मैथमेटिकल टॉपिक है, तो अपन कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज।